Good afternoon to one and all present here. I heartily welcome our guest speaker, Mr. Dhananjay Pandey and our chairperson, Mr. R.R. Saxena, and the faculty members and students of Radharaman College to this session of Savishkar 2015, which is a 3-day national exhibition and symposium on innovation and futuristic approach in science and technology. May I please request our chairman and guest speaker to please come on stage. Today, we are here to discuss on science and technology and hone our understanding of these very areas. As it is said, science may set limits to your knowledge, but it should not set limits to your imagination. With this, I would like to introduce you to our first speaker, Shri Dhananjay Pandey, who is the MD of Cephia Technology, Bhopal. Dhananjay Pandey is currently working as a Managing Director of Cephia Technology Private Limited, Bhopal. He did his BTech from IIT Kanpur in Chemical Engineering. He has a vast experience of 22 years. He has an experience of working with International USA as Chief Process Design, KHD Humboldt-Werag, Germany as Head Process Design and Plant Commissioning, ATEC Austria as Technical Director, LV Technology Thailand as General Manager, Cephia Technology Private Limited. He won various prizes and awards at national and international level, like Worldwide Conquest for Innovation in Cement Industry, got a 3rd prize in Spain, did a lot of work in optimization and upgradation in cement and mineral industry. Now I would like to invite Shri Sushmita Ji Halder to present the bouquet of flowers to our guest speaker. Our chairperson for this afternoon is Mr. R.R. Saxena Ji. He is the chairman of Radharaman Group of Institutions and has completed his MA and LLB from Agra Universities and has also served as a government officer in the past. Now I would like to invite Mr. Arpit Ji Goel to present the bouquet of flowers to our guest. Now I would like to invite Shri Dhananjay Pandey Ji to come on stage and enlighten us with a few words. Good evening, respected chairman sir, lecturers and respected professors, and also my dear friends. Today I am here to say some words about Make in India and innovation and our approach for the future. Basically, I would like to thank you for calling me here and giving me an opportunity to say some words regarding this topic. I myself is following Make in India not from now, but since last so many years. And it was my dream actually to do something in India for which I came back. So the best thing is, I think the first topic is Make in India, in which I would like to start now in Hindi so that everyone can understand and we can better communicate with each other. First of all, we have to understand what is Make in India. Make in India में जो थीम हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने दी थी, उसका सबसे बड़ा मतलब था कि विदेशियों को या दूसरी कंपनीज को इंडिया में कॉल करना कि आप इंडिया में आइए, अपना सेटअप लगाइए और यहाँ पे आप चीज़ों को प्रोड्यूस करिए।
और इसके पीछे सबसे बड़ा मकसद जो था वो हमारी खुद का डेवलपमेंट है, जहाँ तक मेरे को लगता है। क्योंकि अगर कोई भी फॉरेन कंपनी आएगी यहाँ पे, इन्वेस्ट करेगी, अपनी मैन्युफैक्चरिंग सेटअप लगाएगी और यहाँ पे चीज़ों को मैन्युफैक्चर करेगी, तो डेफिनेटली उसको एक ऐसा पूल चाहिए होगा अपने इंजीनियर्स का और साइंटिस्ट का, और कह लीजिए आप टैलेंट पूल ऐसा चाहिए होगा जिसको कि दुनिया के हर व्यक्ति आज देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कि वो टैलेंट पूल कहाँ है जहाँ हम लगा करके कुछ अच्छी चीज़ों को डेवलप कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पे ये सारी कैपेबिलिटीज़ हैं। हमारे पास एक अच्छा टैलेंट पूल है, अच्छे इंजीनियर्स हैं, अच्छे साइंटिस्ट हैं, अच्छे डॉक्टर्स हैं, बस उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलने की देरी है। इसके अलावा हमारे पास ऐसे इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए, ऐसे कॉलेजेस होने चाहिए जो कि रिसर्च को, जो कि इनोवेशन को सपोर्ट करें। क्योंकि इनोवेशन इटसेल्फ एक इतना बड़ा टॉपिक है, इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि उसको नॉर्मली अगर कोई चाहे कि कवर कर सकें, या हमने कह दिया कि हम इनोवेट कर रहे हैं या हम इनोवेशन कुछ कर रहे हैं, तो हम रियली कर रहे हैं। क्योंकि इनोवेशन इटसेल्फ एक बहुत बड़ा वास्ट टॉपिक है और उसके लिए बहुत पेशेंस की ज़रूरत है। अगर आज हम देखें तो अगर आप दुनिया के मंच को एनालाइज करें तो आपको ये समझ आएगा कि नेक्स्ट सेंचुरी में वही कंट्री डोमिनेट करेगी या वही कंट्री सस्टेन कर पाएगी जो इनोवेटिव है। और इनोवेटिव इन विच फील्ड, ऐसा नहीं है कि सारी फील्ड्स में हम करने लगें या हर जगह पे फोकस करें तो हमारा कुछ भला हो सकता है, लेकिन इनोवेशन अगर हमें करना है तो हमें फोकस्ड होकर इनोवेशन करना है और कंप्लीट कंट्री हैज़ टू डू इट। ऐसा नहीं है कि एक इंस्टीट्यूट, एक आदमी, एक ग्रुप करे, बल्कि पूरी कंट्री को उसके पीछे लगना पड़ेगा। एंड मोस्ट ऑफ द एरियाज आर एनर्जी, स्पेस, उसके अलावा एविएशन, हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग, जिसके ऊपर कोई भी कंट्री सस्टेन कर सकती है, अदरवाइज देयर इज नो अदर वे। आज हम चाइना की बात करते हैं और कंट्रीज़ की बात करते हैं, द ग्रोथ ऑफ चाइना इज़ हाई, ये है, वो है, बहुत सी चीज़ें हैं। बट आज भी अगर हम देखें यूरोप और अमेरिका, तो दे आर फार फार अहेड देन एनीबडी एल्स। क्योंकि जो चीज़ आज हम सोच रहे हैं वो हमसे कई दशकों पहले वो सोच चुके हैं और वो उस पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो रिजर्व्स जो हैं, नॉट ओनली फॉर द कंट्री बट फॉर द होल अर्थ, मे बी विल फिनिश्ड इन सम मंथ, सम ईयर्स, सम डेकेड्स, 50 साल में, 100 साल में, कभी न कभी तो वो ख़त्म हो गई। और जब वो ख़त्म होगा तो उसके बाद हमें क्या करना है वो आज से सोचना पड़ेगा, और उस टारगेट को लेके ही हमें इनोवेट करना पड़ेगा, या हमें उस डायरेक्शन में सोचना पड़ेगा कि उस 100 साल के बाद यदि ऐसी परिस्थिति बनती है तो हम क्या करेंगे। यदि आज हमारे पास एनर्जी नहीं है, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है जिससे हम अपनी एनर्जी नीड्स को पूरी कर पाएँ, और फॉसिल फ्यूल्स की सिचुएशन सबको मालूम ही है, तो ऐसा हम क्या करें कि उस समय भी हम उसी कंडीशन में रहें जैसे आज हैं, या उससे बेहतर हो सकें। उसके लिए हमें बहुत सी चीज़ों को देखना पड़ेगा। जियोथर्मल में जा सकते हैं, सोलार में जा सकते हैं, विंड है, टाइडल है। सबसे बड़ी नीड जो वर्ल्ड की आने वाली है दैट इज़ एनर्जी नीड्स, एंड द नेक्स्ट इज़ फूड। इसके करने से हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होगी। मोर ओवर हेल्थ कॉस्ट विल कम डाउन। कंट्री की अगर इकोनॉमी देखें दैट विल ग्रो, और बिना इनोवेशन के कोई भी कंट्री सस्टेन नहीं कर सकती है। इंडिया आज के दिन में एक ऐसे पॉइंट पे खड़ा है, इन इंग्लिश देयर इज अ वर्ड कॉल्ड कस्प, तो एक ऐसे जगह पे खड़ा है कि उस जगह से या तो वो चाहे तो छलांग लगा के आसमान तक पहुंच सकता है, और यदि उसने नहीं लगाया तो उसके बाद सीधे खाई दिखती है, उसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। क्योंकि आज से कुछ समय बाद, कुछ सालों बाद, कुछ दशकों बाद में भी हम लोग उस समय रहें ना रहें, लेकिन एक सिचुएशन जरूर आएगी कि जहाँ पे डोमिनेंट कंट्रीज वो होंगी जो कि अपनी नीड्स को या तो स्पेस से पूरी कर रही होंगी, या एक सस्टेनेबल सोसाइटी बना चुकी होंगी, एक सस्टेनेबल सिस्टम बना चुकी होंगी, वही सर्वाइव कर पाएंगी, और बाकी सारी कंट्रीज जैसा आज फॉलो कर रही हैं वैसे ही उनको फॉलो करती रहेंगी। इसी को सोचते हुए मेक इन इंडिया का जो नारा दिया गया, दैट वाज द की कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से, कि उसके पीछे ये सोच जरूर रही होगी
कि मेक इन इंडिया मतलब केवल इंडिया को FDIs लाना नहीं है, बट कि इंडिया को एक इनोवेटिव कंट्री बनाना है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज इनोवेशन, क्योंकि हर आदमी इनोवेशन की बात करता है, हर गवर्नमेंट इनोवेशन की बात करती है, हर इंस्टीट्यूट इनोवेशन की बात करता है, हर फैक्ट्री इनोवेशन की बात करती है, बट बेसिकली इनोवेशन है क्या और हमारे देश में वो हो क्यों नहीं रहा है। तो मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है, उस अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको ये कह सकता हूँ कि इनोवेशन इसलिए नहीं हो रहा है बिकॉज इट इज़ नॉट इन ए फिजिकल फॉर्म। इनोवेशन कभी फिजिकल फॉर्म में होता ही नहीं है। इनोवेशन स्टार्ट्स विद अ ड्रीम, इट्स ए आइडिया, इट इज़ इन एयर। जब इस आइडिया से आदमी आगे चलता है, एक सपना देखता है, उस सपने को लेके जब आगे बढ़ता है, उसके दिमाग में सोच बढ़ती है, सोच के हिसाब से वो कॉन्सेप्ट्स डेवलप करता है, वो उसको फिर पेपर पे इम्प्लीमेंट करता है, एंड देन ही गोज टू समबडी कि ठीक है मेरे पास ये आइडिया है, लेट अस इम्प्लीमेंट एंड डू इट। तो इनोवेशन कोई भी ऐसी चीज नहीं है विच इज प्रूवन कि आज हमने इनोवेट करना चालू किया, ये आज ही रिजल्ट दे देगी या आज ही प्रूव हो गई और हमारा काम खत्म है। So basically everyone has to understand that innovation is nothing but an idea, maybe a good idea or maybe a bad idea, but definitely we have to try. ऐसा नहीं है कि हम किसी भी चीज को बिना ट्राई किए हुए छोड़ देंगे, नहीं ये तो बेकार आइडिया है, ये खराब आइडिया है, इट इज नॉट पॉसिबल, ये हो नहीं सकता है। अगर ऐसा होता तो आज हम टीवी नहीं देख रहे होते, या आज से 50 साल पहले जब हम छोटे थे उस समय कोई इमेजिन भी नहीं कर पाता था कि अमेरिका की न्यूज़ हम लाइव इंडिया में बैठ के देख लेंगे, बट टुडे वी आर सीइंग इट। हो सकता है उस समय हम बात करते तो शायद लोग हंसते उस चीज़ को, लेकिन आज somebody carried that idea, उसके ऊपर लोगों ने काम किया और आज उसका रिजल्ट है। सेम वे वी हैव टू डू ऑल्सो। अब इनोवेशन करने हम निकले तो, लेकिन इनोवेशन के लिए हु इज गोइंग टू सपोर्ट, दैट इज द बिगेस्ट फैक्टर। हर कॉलेज, हर इंस्टीट्यूट, हर गवर्नमेंट हमेशा कहती है कि आप इनोवेशन में आओ, बिना इनोवेशन के कंट्री नहीं चल सकती है, एवरीथिंग, एंड इट इज ट्रू ऑल्सो। बट बेसिकली इनोवेशन का एक कॉन्सेप्ट को हु इज गोइंग टू रियली सपोर्ट इट, दैट इज अनदर बिग क्वेश्चन। इसी बीच में मैं आपको एक दो एग्जाम्पल कोट करना चाहूँगा विच वॉज ए फैक्ट इन माई ओन कैरियर। When I was in US, there was a friend of mine who was also a colleague in a university. मैं अपनी कंपनी की तरफ से स्टेट यूनिवर्सिटी में जाता था पेंसिल्वेनिया में, तो वहाँ पे मैं कुछ लेक्चर्स लिया करता था विच वॉज फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ थ्योरी एंड इंडस्ट्रियल स्केल। तो कभी भी जो थ्योरीज होती हैं उनको इंडस्ट्रीज़ में रियली में कैसे इम्प्लीमेंट होती हैं या व्हाट चेंजेस आर देयर, that kind of classes were there in the evenings. तो मेरे एक US के कोलीग थे, उन्होंने मुझे एक बार बोला कि he is going to set up a small unit जिसमें कि he needs my help to do a lot of paperwork and lot of things, और can I support him? तो मैंने बोला yes definitely, why not। तो वहाँ से मुझे भी कई चीज़ें सीखने को मिली जिसने रियली उस समय की जो मेरे अंदर लॉ जलाई वो आज तक जल रही है। तो देन वी वेंट टुगेदर। तो जब मैंने उसके छोटे से सेटअप देखा तो इट वाज सम कंप्यूटर्स, सम स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स फॉर सम हाई प्रिसीजन कंपोनेंट्स और ऐसा ऐसा करके उन्होंने रखा था। एंड टुगेदर वी वेंट टू ए आर्मी सेंटर जहाँ की ही वॉज डिस्कसिंग दैट लेट अस गो विद द डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेटअप। आज हमारे यहाँ पे अगर हम डिफेंस की बात करें तो यू हैव टू गो इन सच ए लॉन्ग प्रोसीजर कि आदमी की आधी लाइफ तो पेपर वर्क में ही खत्म हो जाती है। बट देयर वी वर एबल टू मीट द पर्सन इन चार्ज ऑफ दिस प्रोजेक्ट्स, आई थिंक नॉट मोर देन ए वीक्स टाइम। उनको हमने एक एप्लीकेशन लिखी, दैट एप्लीकेशन वॉज पुट इन फ्रंट ऑफ हिम, ही गेव ए डेट। तो मेरे को नहीं लगता कि इट वॉज ए हाफ एन आवर जॉब, वी गॉट ए डेट, वी मेट। जब हम वहाँ गए हमने अपना पूरा कॉन्सेप्ट उनको समझाया कि हम क्या क्या करना चाहते हैं, तो उन्होंने ये बोला कि ठीक है आप ऐसा करिए कि वी हैव ए जॉब फॉर यू, अगर आप उसको करने में इंटरेस्टेड हो तो आप एक लिस्ट बना लाइए
तो वो लिस्ट उन्होंने हमें दी, उसमें सबसे ऊपर में लिखा था कि वेदर यू आर रियली इंटरेस्टेड टू डू योर जॉब और नॉट, येस और नो। उसके नीचे था कि व्हाट काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर यू आर हैविंग, उसके नीचे था कि आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वेदर यू नीड सम एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, इफ येस व्हाट इज द लिस्ट एंड व्हाट आर द कॉस्ट्स। उसके बाद व्हाट आर द डेडलाइंस, इन हाउ मेनी डेज अप्रॉक्सीमेटली यू कैन कंप्लीट, ऐसे एक बड़ा सा क्वेश्चनर था। एंड देन वी हैव टू मेक द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, वी डिड दैट। हम अगेन वी गॉट द डेट, आफ्टर 2 weeks वी वेंट देयर। उस पूरी लिस्ट में वी गॉट द ड्राइंग्स, देन वी गॉट द मशीन लिस्ट, जितना भी डिटेल हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना सकते थे बना करके पहुंचे। पहुंचने के बाद फाइनली ऑल डिस्कशन वेंट अप। उन्होंने देखा इसमें करीब $2 million का एडिशनल इन्वेस्टमेंट आ रहा था। सो द बिगेस्ट क्वेश्चन फ्रॉम आवर साइड वाज हु विल डू दैट इन्वेस्टमेंट। जब हम वहां पहुंचे तो देन व्हेन ही सॉ दिस लिस्ट, he openly told that okay, we have a budget for this around $5 million and we will allocate that all $5 million to your company for this job. And at the same time they deputed one person from their own team to look after all the operations. मतलब उस आदमी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई थी कि वो हमारे साथ उस फैक्ट्री में बैठेगा फ्रॉम day 1 to day last, कि जब तक ये काम नहीं हो जाता है तब तक उस आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये काम थ्रू हो, प्रॉपर वे में चले, प्रॉपर मशीन सेटअप हो, कहीं पैसे का मिसयूज ना हो, बट काम चलना एक प्रायोरिटी थी। अगर उसी सिचुएशन को मैं अपने यहाँ पे देखता हूँ तो ये बाद के पार्ट हमारे यहाँ मिसिंग है, क्योंकि हमारे पास टैलेंट है। ऐसा नहीं है कि हमारे लोगों के अंदर वो आग नहीं है, हमारे अंदर भी वो आग है, और ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं जिनके अंदर वो आग है। बट वी हैव टू गिव देम ए राइट प्लेटफॉर्म विद ए राइट बैकअप, तभी जाके इनोवेशन पॉसिबल हो सकता है। दीज काइंड ऑफ एग्जाम्पल्स आर एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स आई हैव फेस्ड। मैं आपको अभी आगे डिटेल बताऊंगा कि हमने क्या क्या R&D की और क्या हमने अचीव किया है। उसमें भी ऐसी बहुत सी हर्डल्स आई थी जिसको कि समहाउ वी वर एबल टू मैनेज इट, क्योंकि हमारे अपने सपने जो थे वो हमारी प्रॉब्लम्स से बहुत ज़्यादा बड़े थे। प्रॉब्लम्स वेर टू लेस फॉर आवर ड्रीम्स, और आज भी हैं। यहीं भोपाल में इसके अलावा आई वॉज टॉकिंग अबाउट फंडिंग। अब एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है जो कि हमारे जो साइंटिस्ट हैं, प्रोफेसर्स हैं या बाकी जूरी मेंबर्स हैं वो भी इस पे गौर करें कि क्या आज हम एक इनोवेशन के लिए कोई आदमी एक पेपर लेके आपके पास आए तो क्या उसको इंडिया में ईजिली फंडिंग अवेलेबल है, और अगर फंड अवेलेबल है तो बैंक्स उसको किस रेट पे फिनांस करते हैं। आई नो एन नंबर ऑफ केसेस जहां की इनोवेशंस लेके लोग पहुंचे, उनके पास ग्रेट आइडियाज हैं, बहुत काम कर सकते हैं, देश के लिए बहुत अच्छा डेवलपमेंट कर सकते हैं, बट या तो उनके आइडियाज को फेंक दिया गया, या अगर उनको गलती से फंडिंग मिल भी गई तो इट वाज एट ए इंटरेस्ट ऑफ 18 और 20% पर ईयर। उसी की जगह पे आज आप बड़े बड़े फंड देखिए या स्क्रैप की कंपनीज देखिए या ऑयल कंपनीज देखिए, उनको 10% 12% पे फंडिंग मिलती है। सो दिस सिचुएशन हैज टू बी रिवर्स्ड, तब जाकर के इनोवेशन होगा। एक अगर इनोवेटर जाता है तो ही शुड गेट ए फंड एट हाफ द प्राइस ऑफ व्हाट इंडस्ट्रीज आर गेटिंग, तब जाके उसमें वो हिम्मत आएगी कि ही कैन गो फॉर इनोवेशन, बिकॉज इनोवेशन इज समथिंग विच इज नॉट गारंटीड। आप आज इनोवेशन चालू करते हैं, उसमें आप कितनी बार फेल होते हैं या कितनी बार पास होते हैं, नोबडी नोस, बिकॉज यू आर स्टार्टिंग विद अ ड्रीम। इसके अलावा अगर देखें तो हमारे जो साइंटिस्ट हैं, रेनाउंड साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं, अगर इनको देखें तो दे शुड ऑल्सो गेट ए रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी। ठीक है, हमारे यहाँ रिस्पेक्ट है, वी रिस्पेक्ट, but the respect not like what we get in US or in Europe or somewhere. There they are the highly paid people. तो उनको बाकी सब सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, उनका अपना नाम, उनकी अपनी रिस्पेक्ट इज सो हाई दैट दे गेट डन एवरीथिंग। वही चीज़ हमारे यहाँ भी आनी चाहिए। हमारे यहाँ भी जो हमारे साइंटिस्ट हैं, हमारे प्रोफेसर्स हैं, हमारे लेक्चरर्स हैं, हमारे इंजीनियर्स हैं, दे शुड गेट द सेम काइंड ऑफ रिस्पेक्ट इफ दे टॉक अबाउट इनोवेशन, इफ दे टॉक अबाउट समथिंग। So that is also missing. That is also one of the important factor. आज अगर देखें तो इनोवेशन के लिए मैं एक और चीज़ दूंगा जो मैं खुद प्रैक्टिस करता हूं कि आई ऑलवेज गो बैक टू द पास्ट।
और कई बार आप भी सोचते होंगे, मैं भी सोचता हूं कि एक देश जिसके अंदर की इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट था, जहाँ की आर्यभट्ट हुए, जहाँ के ऐसे ऐसे लोग हुए जिन्होंने दुनिया को ऐसी ऐसी चीज़ें दे दी जो आज साइंस खोज रहा है, वो पहले ही वो बता चुके हैं, पहले ही लिख चुके हैं। तो ऐसा क्या हो गया, क्या गड़बड़ी हो गई हमारे पूरे सिस्टम में कि आज हम ऐसी जगह पे बैठे हैं जहाँ हम फिर से इनोवेशन की सोच लेके बैठे हैं कि इनोवेशन करें, जबकि ऑलरेडी हम उससे कई गुना, कई लेवल, कई दशकों आगे थे। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो अपने सिस्टम में गड़बड़ी हुई है, जिसके कारण कि हम वो सारी चीज़ें लूज कर गए। ऐसे बहुत से केसेस आपने भी सुने होंगे कि हमारे यहाँ पे संस्कृत अगर देखा जाए तो संस्कृत हमारे यहाँ कुछ विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाता है, और मोर ओवर टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स में तो संस्कृत का नाम भी नहीं है। बट अगर मैं जर्मनी में जाऊँ, जहाँ की आई वॉज वर्किंग ऑल्सो, अगर वहाँ मैं जाके देखता हूँ तो वहाँ की अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में संस्कृत का डिपार्टमेंट है, एंड दे आर डूइंग लॉट ऑफ रिसर्च ऑन संस्कृत बिकॉज दे गेट लॉट ऑफ गुड आइडियाज़ फ्रॉम देयर। ऐसा नहीं है कि उसमें आइडियाज़ नहीं है, देयर आर एन नंबर ऑफ आइडियाज़, और ऐसे ऐसे आइडियाज़ हैं जो कि स्पेस एक्सप्लोरेशन से लेके और नीचे तक सब कुछ मिल जाएगा आपको, एंड यू कैन, एंड देयर इज अ डायरेक्शन, देयर इज एवरीथिंग, बट दैट ऑल्सो वी हैव टू mix, because there is lot of patience, lot of energy is required for innovation, for doing good things. तो उसके लिए हमें हर चीज को मिक्स करना पड़ेगा. We cannot ignore our old texts, we cannot ignore spirituality, we cannot ignore technical science, because all these things are mixed together. जब तक हम हर एंगल को लेके नहीं चलेंगे तब तक हम इनोवेशन की जड़ तक नहीं पहुंच पाएंगे. So we have to include all these aspects and then think then which direction we have to go and what should be our aim of the future. Now, after that, I would like to share my own dreams for which we worked very hard for last almost 4 years. One of my dream is, why I came to Bhopal was that I have a dream that I should make Bhopal on the technological map of India. Okay, I have started. And it is not I, it was my dream, but at the same time, the whole team is working behind it day and night. So I will say that it was a dream of our whole team who are working with us on different projects. We have achieved maybe 0.00001%, but definitely we have achieved it till today. And I'm very happy with that achievement. At least we have put our first step, because that first step itself is very important. And that achievement has come after a long struggle. If I see what we did in last, it is not 1 day or 2 days. It was 4 years, which took us a long time to do something, and still we are doing. And at the same time, we face a lot of problems, which also I will share with you. But at the same time, I will say that the dreams should be so high that all the problems should become negligible. Problems normally which comes for innovation is one of the major part is funding. Then the second power is dedicated manpower. Because जैसे जैसे समय बीतेगा, जैसे जैसे आप फेल होंगे, जैसे जैसे आप उसके अंदर देखेंगे एक के बाद एक फेलियर्स आ रही है, स्टिल यू नीड द सेम काइंड ऑफ एंथुजियाज्म. स्टिल आपको चाहिए कि एक ऐसा डेडिकेशन हो जो कि मेरी उस फेलियर्स को बिल्कुल जीरो करते हुए आगे बढ़े. तो एक वैसी टीम बनना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. देन nobody should give us a limit of time कि आपको ये काम करना है या आपको ये फंड दिया है इनोवेशन के लिए तो आप 6 महीने में ही करो इसको. बिकॉज nobody can guarantee कि 6 महीने में मैं उसको अचीव कर लूंगा या नहीं करूंगा. और अगर कोई 6 महीने में उसको गारंटी कर रहा है तो इट इज नॉट ए इनोवेशन. ये भी एक फैक्ट है. तो हमें दोनों तरफ से देखना है कि इनोवेशन क्या है, और देयर शुड बी नो टाइम लिमिट्स फॉर दैट. इंडस्ट्री को भी सोचना पड़ेगा, अगर बैंक्स फंड कर रहे हैं उनको भी सोचना पड़ेगा, अगर ओनर है कोई वो फंड कर रहे हैं उनको भी सोचना पड़ेगा कि वी शुड नॉट बाउंड दिस इनोवेशन विद टाइम. क्योंकि जहां हमने उसको टाइम से बाउंड किया, इट इज नॉट इनोवेशन, समथिंग एल्स. हम अचीव कुछ करना चाहते हैं, कुछ और कर लेंगे.
तो आवर माइंड शुड बी फ्री कि हाँ, हमें जो इनोवेट करना है, दैट ओनली दैट वी शुड कॉन्सेंट्रेट एंड रेस्ट वी शुड फॉरगेट। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ है कि जो टीम उस पर काम कर रही है वो उसके फेलियर्स को एक्सेप्ट कर पाए, उसको डाइजेस्ट कर पाए, बिकॉज फेलियर्स आर बाउंड टू कम। वी ऑल्सो फेल्ड लॉट ऑफ टाइम्स। कई बार हम लोग निराश हुए, कई बार फिर हम उठे, फिर से उसको किए, निराश होते हैं, बहुत सी टाइप की प्रॉब्लम्स आती हैं उसमें, लेकिन फिर भी आपको हर स्टेप पे उसको क्रॉस करते हुए जाना है, क्योंकि आप एक सपना लेके चल रहे हो। सपना इतना बड़ा है कि प्रॉब्लम्स बहुत छोटी हैं। और ये भी आपको मान के चलना पड़ेगा कि अपने यहाँ पे इनोवेशन के लिए कोई अभी तक सपोर्ट स्ट्रक्चर नहीं है कि आप अगर इनोवेट करना चाहते हो, आपके पास कोई अच्छा आइडिया है, तो आपको कोई सपोर्ट करने आएगा। यू हैव टू गो अलोन। जैसे एक अपनी पुरानी कहावत होती है कि अकेला चना कुछ नहीं कर सकता है, बट हमें उसके उल्टा चलना पड़ेगा कि अकेला ही चलना है, देयर इज नो अदर वे। और ये भी मान के चलना है कि हमें सोसाइटी को चेंज करना है। आज हम किसी भी आदमी की सफलता को देखते हैं, वी रिवॉर्डेड कि ये सफल हुआ है, ये बड़ा अच्छा आदमी है। बट हम तब बदलेंगे, तब हम इनोवेटर्स बनेंगे, या तब हमारी सोसाइटी चेंज होगी, हमारी थिंकिंग चेंज होगी, हमारी कंट्री प्रोग्रेस करेगी, जब हम फेलियर्स को भी रिवॉर्ड करना चालू करेंगे कि ठीक है, इसने मेहनत की है, ये फेल हुआ है, बट ही शुड गेट रिवॉर्डेड फॉर हिज ऑनेस्ट वर्क। जिस दिन हम वो कॉन्सेप्ट ले आएंगे अपने सिस्टम में, ऑटोमेटिक सब चीज़ें चेंज हो जाएंगी। तो हमें वो करना है। कौन फेल नहीं हुआ? आप नासा को देखिए, नासा सो मेनी एयरक्राफ्ट दे हैव सेंट, स्टिल फेलियर्स होते हैं। कोई भी आदमी कहीं पे भी बनाता है, अगर कोई भी डेवलपमेंट प्रोसेस चल रही है, उसमें हजारों टाइप की फेलियर्स होती हैं, बट कोई कंट्री उसको फेलियर्स को स्टिल दे गो ऑन फंडिंग, स्टिल दे गो ऑन इन्वेस्टिंग, स्टिल दे गो ऑन इनोवेटिंग, उसमें इंप्रूवमेंट करते करते दे रीच एट ए स्टेज। लेकिन अगर हम उसको बीच में ही रोक दें और बोले कि नहीं, फेल हो गया, ये यूजलेस हो गया है, दैट किल्स द इनोवेशन। तो वो कॉन्सेप्ट भी हमें चेंज करना है। हमारे अपने 3 प्रोजेक्ट्स थे जिसके ऊपर हम काम कर रहे थे। वन वॉज बायोनिक्स, अनदर वॉज वेस्ट डिस्पोजल, वेस्ट ट्रीटमेंट, और तीसरा एरोस्पेस में। वी हैव अचीव्ड इन ऑल द एरियाज। we have got some success and still we are continuing on that path। अभी भी बहुत से hurdles आए, बहुत से problems हैं, but somehow we are crossing it and we are going ahead। waste to energy एक ऐसा project है which is a big problem for India। अगर आज हम देखें, हर जगह कचरा है, हर शहर में कचरा है। In fact we propose that to our own municipal corporation also। we are still in discussion with that। उसमें हम waste से coal बनाते हैं। लेकिन इसकी प्रोसेस में डेफिनेटली आपसे शेयर करना चाहूँगा कि हाउ वी गॉट दिस प्रोसेस और उसके लिए हमें क्या क्या दिक्कतें आई। आज हम 100% थ्रू प्रोसेस पे बैठे हुए हैं विद ए कंप्लीट प्रूवन रनिंग डिज़ाइन, लेकिन इसको पाने के लिए हमें बड़ी दिक्कतें करनी पड़ी। इनिशियली वी हैड ए कॉन्सेप्ट। उस कॉन्सेप्ट को जब हम लेके गए फंडिंग के लिए, वी अप्लाइड टू द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, बहुत जगह हम लोगों ने कोशिश की, देयर वॉज नो रिस्पॉन्स, nobody was ready to fund it। और इनोवेशन को जब तक आप डिजाइन नहीं करते हो कि डिजाइन वी कैन डाइजेस्ट, लेकिन अगर हमें उसका एक पायलट प्लांट खड़ा करना है, देन वी नीड सम काइंड ऑफ फंडिंग। तो अगर उसको कोई फंड नहीं कर रहा है, तो समवेयर वी हैव टू अरेंज इट। सो फाइनली व्हाट वी डिड with our own connections or with our own friends which were outside India when I was working there, we got together from Japan, from Switzerland, and then from our own company. We teamed up, we applied we gave an application in Japanese Environmental Ministry with the help of Tokyo Institute of Technology. और हमें 1 million USD की फंडिंग वहाँ से हो गई within no time, because it was an environmental project। और हमने उस पायलट प्लांट को जापान में लगाया बिकॉज दे फंडेड इट, और उनकी ये रिक्वायरमेंट थी कि इट शुड बी रन हियर एंड देन वी शुड गिव ऑल द रिजल्ट्स, और ये वो सारी चीज़ें थी। तो वो सब करके देन वी गेव द रिजल्ट्स। नाउ दैट ऑल पायलट प्लांट्स आर रनिंग। अब उस टेक्नोलॉजी को अब हम इंडिया में लेके आ रहे हैं। तो इसमें बहुत सारी दिक्कतें आई। कोशिश हमने भी की थी कि उसको इंडिया में ही लगाएं, बट आज ऐसी सिचुएशन बनेगी, हमें यहाँ पे वो सपोर्ट स्ट्रक्चर नहीं था जिसके बारे में मैं आपसे पहले बात कर रहा था। तो हमें अल्टीमेटली सपोर्ट कहाँ से लेना पड़ा? जापान से।
और फिर उसको वहाँ लगा करके तब आज हम जा करके अपने यहाँ पे बात कर रहे हैं कि वी विल गो अहेड विद दैट, और उसका भी अभी एंड कब आएगा दैट आई डोंट नो. So this was our own story for waste to energy, where we are converting this municipal waste to coal, and that too with a high value coal. और अगर हम उसका देखें तो coal substitution with MSW will give more burnout capability to even power plants. करीब 7% improvement होता है. एक तरफ तो आप coal produce कर रहे हैं, उसके अलावा जो burnout efficiency है that also increases around 7%. तो देर इज अ मल्टीपल इफेक्ट ऑन द परफॉर्मेंस. और यदि इसको हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर पाए, यदि आज हमने इसको भोपाल में लगा लिया और अगर ये कुछ ऐसा रहा कि ये सिस्टम यहाँ इम्प्लीमेंट हुआ, तो वी कैन सी ए कंप्लीट नीट एंड क्लीन भोपाल विद ए सेल्फ सस्टेनेबल एनर्जी सोर्स. तो इस टाइप के एरियाज में वी हैव टू एंटर. या तो हमें ऐसी एरिया में जाएं, स्पेस में जाएं, बिकॉज मिनरल्स आर एग्जॉस्टिंग. धीरे धीरे अर्थ के रिसोर्सेज खत्म होंगे. नाउ व्हाट पीपल आर डूइंग, व्हाई दे आर गोइंग टू मार्स, व्हाई दे आर एक्सप्लोरिंग मून, व्हाई दे आर एक्सप्लोरिंग अदर प्लैनेट्स. देयर इज वन रीजन ऑल्सो दैट दे वांट टू एक्सप्लोर द मिनरल्स. अगर आज हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी हो कि हम बाहर से स्पेस से मिनरल्स ले आएँ या वहाँ से रिसोर्सेज ले आएँ या वहाँ से हमारी एनर्जी नीड्स पूरी हों, तो देन वी आर सेल्फ सफिशिएंट. अभी इवन स्टीफन हॉकिंस का अगर आप स्टेटमेंट देखें सम डेज बैक, उन्होंने भी यही बोला कि अगर हमें सस्टेन करना है या हमने अपने आगे वाली जनरेशन्स को कुछ देना है या उनके बारे में सोचना है, तो वी शुड एक्सप्लोर द यूनिवर्स. तो आज इंडिया को वो जरूरत है, बिकॉज वी ऑलरेडी इन आवर पास्ट, ठीक है वो अगर कहानियां भी हों, बट दैट कहानियां जो थी दैट वर सो ट्रू कि अगर उसको भी हम एक सपना मान के आगे बढ़ें तो बहुत बड़ी बात है. तो उसमें ऑलरेडी एक्सप्लोर किया हुआ था कि स्पेस में ये है वो है, और बहुत सी चीज़ें सही भी हैं. तो आज वो हम काम क्यों नहीं कर सकते हैं? हम अपने एनर्जी नीड्स स्पेस से पूरी करें, हम अपनी नीड्स को स्पेस में जाएं, एरोस्पेस में जाएं, हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग में जाएं. और एक एरिया ये हो गया. दूसरा एरिया जो हमारी अपनी सोसाइटी को स्ट्रीमलाइन करने का है, तो दैट एरिया इज वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट ट्रीटमेंट, एनर्जी फ्रॉम वेस्ट. ये सारी चीज़ें भी कर सकते हैं. तो देयर इज अ ह्यूज आइडिया फॉर इनोवेशन. हर जगह से उसको पिकअप किया जा सकता है. बट डेफिनेटली वॉट एवर पॉइंट्स आई हैव डिस्कस दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच हैज़ टू बी इम्प्लीमेंटेड. अगर हम गवर्नमेंट एजेंसीज में जाएं तो गवर्नमेंट को भी एक प्रोएक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा कि एक इनोवेटर है, वो अपनी फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर रहा है मान लीजिए इनोवेशन के लिए, और जब वो पेपर वर्क के लिए जाता है देन ही सी कि देयर आर 10 काइंड ऑफ रजिस्ट्रेशन ही हैज़ टू गेट. तो वो आदमी अपना दिमाग इनोवेशन में लगाने के बजाय रजिस्ट्रेशन में लगाना चालू कर देता है. रजिस्ट्रेशन में जब तक वो थ्रू हुआ तब तक उसको फंडिंग की प्रॉब्लम आने लगती है, बिकॉज देयर आर डेडलाइंस. तो गवर्नमेंट को ये बहुत सारे एंगल पे सोचना पड़ेगा, अपने कंप्लीट अप्रोच को चेंज करना पड़ेगा. वी शुड हैव इंक्यूबेशन सेंटर्स, वी शुड हैव इन एवरी सिटी, इन एवरी प्लेस वी शुड हैव सम सेंटर्स वेयर इनोवेटर्स, वेयर इंजीनियर्स, वेयर साइंटिस्ट कैन गो, दे कैन डिस्कस देयर आइडियाज एंड देन दे गेट इमीडिएट फंड्स, जैसा कि यूएस में था. मैंने आपको जो एग्जाम्पल बताया था. जब तक वो हम नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है, बिकॉज दीज आर द बेसिक नीड्स. आप एक इनोवेटर से क्या चाहते हैं कि वो जाकर के आपका वैट या सर्विस टैक्स के बारे में सोचे या वो इनोवेट करे? सो द गवर्नमेंट हैज टू सपोर्ट इन ए डिफरेंट वे. एक कंप्लीट डिफरेंट अप्रोच लगानी पड़ेगी इसके लिए, एंड दैट अप्रोच हैज टू कम, अदरवाइज नथिंग विल मूव. और इसके लिए हमारे यहाँ जो जूरी मेंबर्स हैं यहाँ, दे कैन टेक दिस एज ए पॉइंट, मे बी माई ओन ग्रीवियंसेस, बट दिस इज वॉट वी हैव फेस्ड एंड इट इज ए फैक्ट. अगर मुझे मंडीदीप में एक इंटरनेट कनेक्शन लेना है, आई स्ट्रगल्ड फॉर 2 years. तो आप सोच सकते हैं आज की डेट में यदि इंटरनेट आपके पास इजीली अवेलेबल नहीं है, जस्ट ऑन ए फोन कॉल, और 2 साल आपको लग जा रहे हैं, हाउ यू आर गोइंग टू टॉक विद द साइंटिस्ट, हाउ यू आर गोइंग टू डिस्कस योर आइडियाज, या कहीं भी मुझे दुनिया में कनेक्ट होना है. तो ये छोटी छोटी चीज़ें भी हमें ध्यान में देनी होंगी कि यहाँ से लेके और एंड तक हम कैसे सपोर्ट कर पाएँ. जब तक गवर्नमेंट हर एंगल को नहीं सोचेगी, हर चीज़ को नहीं सोचेगी, इसमें हम आगे बढ़ ही नहीं सकते. और आइडियाज़ के साथ हमें उनको एक रिस्पेक्ट भी देनी होगी इनोवेटर्स को, जो कि हर आदमी चाहता है. इट्स ए ह्यूमन नेचर. क्योंकि हमारे यहाँ एक सिस्टम है, जैसे ही फेल हुए वो यूजलेस हो जाता है. दैट काइंड ऑफ रिस्पेक्ट ऑल्सो इज रिक्वायर्ड. लोगों का माइंड सेट चेंज करना पड़ेगा कि कई बार इवन पेरेंट्स दे से कि ठीक है आप इनोवेशन में हो, तब से R&D कर रहा है, कुछ करता धरता नहीं है, इसको कोई काम धाम नहीं है. देन नेबर्स ऑल्सो स्टार्ट कंप्लेनिंग. बट
इट शुड बी इन अदर वे राउंड. ठीक है, कोई आदमी कुछ काम तो कर रहा है, एटलीस्ट ही इज पुटिंग ए ऑनेस्ट वर्क, सो उसके लिए हमें एक रिस्पेक्ट देना चाहिए. दैट रिस्पेक्ट इज नॉट देयर. दैट रिस्पेक्ट हैज टू कम फ्रॉम एवरीबॉडी. देन आपने इनोवेशन कर लिया, देन व्हाट हैपेंस? आपने कोई चीज बना ली, आपने एक पायलट प्लांट बना लिया. नाउ द मेजर पार्ट इज, जो एंड है, आई विल जस्ट फिनिश माई विद इन 2 minutes. द एंड इज दैट हु इज गोइंग टू एक्सेप्ट योर इनोवेशन. मैंने एक पायलट प्लांट तो बना लिया, बट नाउ आई हैव टू अगेन डू द सेम एक्सरसाइज कि उसको एक्सप्लेन करूं लोगों को जा करके कि भाई ये ऐसा चलता है, ऐसा चलता है, ये फायदा है, वो फायदा है, ये फायदा है. And even after that also people will not accept, because our mindset is like that. If something is coming from Europe, we will immediately say yes, this is the best. But अगर आज हमारा अपना आदमी उसको बना रहा है, we will not recognize him. But मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि today we are reversing the scenario. ठीक है, इंडिया में तो नहीं कर पा रहे हैं, but we have change in foreign. हमारे यहाँ पे हर हफ्ते one delegation is coming from Switzerland, from Japan, from France, and they are amazed to see कि जो चीज़ें वो पिछले 50 साल से हाथ से घिस के बनाते थे, we are making that complete design and automated on machines. So that is what we have achieved. We have got a recognition from them. But the same recognition should come also from our own people. They should trust us. And until that trust will not come, nothing is going to move. So I think I have spoken enough, and thank you very much for giving me this opportunity. Thanks. Thank you, sir. Before calling our chairperson, Mr. R.R. Saxena ji, on stage to speak a few words, I would like to state a few points and accolades and awards that Radharaman Group of Institutes has achieved. It has been the Best Emerging Institute Award in its early days in 2007, given by Honorable Chief Minister of State of MP. Best Placement Award in 2011, which was awarded by Honorable Minister of MP. Award by Mr. V. Ramaswamy for conducting world's largest single-shift digital assessment with 0 defects for conducting GATE, CAT exams, etc. Sports Times Awards, and many more. Apart from that, Radharaman Group of Institutes has provided platform for the talent pool of its own students of MP by inviting companies like TCS, Impetus, GMR, Asia Motor, World, Birla Group of Institutes for campus hiring. Now I would like to invite Sir to speak a few words. आदरणीय स्पीकर महोदय, इस सविस्कार कार्यक्रम में उपस्थित विद्वानजन, प्राध्यापकगण, अन्य आदरणीय अतिथिगण, छात्रों एवं मीडिया से आए मित्रों, मैं राधाराम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मुझे इस सेशन में चेयर करने के लिए आमंत्रित किया है, इसके लिए मैं आयोजकों का हृदय से आभारी हूं। यह कार्यक्रम आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उभरते वैज्ञानिक एवं तकनीकी छात्रों को एक उपयुक्त मंच प्रदान करेगा, जो भविष्य में स्वावलंबी होकर एक अच्छे उद्यमी बनने में सक्षम हो सकेंगे। राष्ट्र के निर्माण में आपकी अहम भूमिका है। कार्यक्रम हमारे छात्रों के विवेक को प्रज्वलित करेगा तथा उनका रुझान एवं सार्थक प्रयास प्रांतीय एवं राष्ट्रीय उत्थान के लिए पूर्ण रूपेण तत्पर होगा। इस कार्यक्रम के द्वारा छात्रगण अपने बुद्धि, विवेक एवं ज्ञान का उचित दोहन कर सकेंगे, जो कि राष्ट्र स्तर पर प्रारंभ एवं उपयोगी राष्ट्रीय स्वच्छता मिशन, मेक इन इंडिया, स्मार्ट सिटी, स्मॉल विलेज, बायो इन्फॉर्मेटिक्स एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन लॉजिक मैनेजमेंट, एप्लीकेशन ऑफ सुपर कंप्यूटर आदि अनेक क्षेत्रों में विकास हेतु नए आयाम स्थापित करने में मददगार होंगे। यह सविस्कार IFAS 2015
3 दिवसीय आयोजन है जो 26 से 28 फरवरी 2015 तक मैनिट प्रांगण में आयोजित हो रहा है। यह संयुक्त रूप से विद्यार्थी कल्याण न्यास, मैनिट एवं MPCST के सहयोग से आयोजित है, जिसमें लगभग 2000 छात्रगण, उद्योग विशेषज्ञ, शिक्षाविद, उद्यमी, शोध एवं विकास तथा शासकीय संस्थानों के अधिकारियों आदि से रूबरू हो रहे हैं। इस कार्यक्रम में कटिंग एज साइंटिफिक पेपर्स, डिस्प्ले ऑफ साइंटिफिक टेक्नोलॉजी मॉडल्स एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स से गहन वार्तालाप की प्रधानता है और उद्यम के क्षेत्र में रुचि रखने वाले समस्त छात्रों को अपनी प्रतिभा निखारने हेतु एक उपयुक्त मंच उपलब्ध कराने का सत प्रयास है। मैं व्यक्तिगत रूप से एवं अपनी संस्था की ओर से इस सविस्कार कार्यक्रम के लिए प्रबुद्ध आयोजकों को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। मेरी आंतरिक इच्छा है कि इस प्रकार के बुद्धिदीप्त कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष आयोजित हों। मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि इसके अच्छे परिणाम निकट भविष्य में दृश्यमान होंगे, जो कि हमारे भारत राष्ट्र को विश्व शक्ति एवं विश्व गुरु का सम्मान दिलाएंगे। धन्यवाद। Thank you, sir. I'm sure the knowledge gained in the past hour is bound to inspire us. Now, I would like to call Shubham Ji Dwivedi Ji to present the memento to our guest speaker. Now I would like to invite Arindam Ji Sharma to present the memento to our chairperson. Now I would like to invite Shushmita Ji Haldar to present the vote of thanks. वोट ऑफ थैंक्स के बाद वंदे मातरम होगा, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप वोट ऑफ थैंक्स के बाद अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। धन्यवाद। इस तृतीय सत्र के वक्ता डॉक्टर धनंजय पांडे जी एवं अध्यक्ष डॉक्टर R सक्सेना का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहूँगी। उन्होंने अपने व्यस्त दिनचर्या से समय निकालकर हमारा मार्गदर्शन किया। धन्यवाद। मैं राधा रमन कॉलेज के छात्र छात्रा प्रतिनिधि एवं प्राध्यापक मंडल का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि वे इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। धन्यवाद। इसके उपरांत वंदे मातरम होगा। आप सबसे निवेदन है कि आप सब अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्य श्यामलां मातरं वंदे शुभ्रजोत्स्नां पुलकितयामिनीं पुल्लकुसुमिता द्रुमदलशोभनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे कोटि कोटि कंठः कल कल निनाद कराले कोटि कोटि भुजय धृत कर कर भाले
अबला की नुमाय तो भले बहुबल धरणिं नमामि तरणिं रिपुदल वर्णिं मातरं वन्दे मातरं। तुमि विद्या तुमि धर्म तुम हृदय तुमि मर्म त्वमयि प्राणा शरीरे बहुदे तुमि मा शक्ति हृदये तुमि मा भक्ति त्वमरहि प्रतिमा गणि मंदिरे मंदिरे मातरं वन्दे मातरं। त्वमहि दुर्गा दश पहरण धारिणीं कमला कमलदल विहारिणीं वाणी विद्यादायिनीं नमामि त्वां नमामि कमलाम् अमलाम् अतुलां सुजलां सुफलां मातरं वन्दे मातरं। श्यामलां सरलां सुष्मितां भूषितां धरणिं वर्णिं मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। भारत माता की